سب سینئرز کی اجازت کے ساتھ ہم کنٹینیو اس ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے تاکہ ہم کنٹینیو سیکھیں اور برکت پائیں۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے یسوع مسیح کو صرف مانا ہی نہیں بلکہ اپنی جان تک دے دی ہے، اور یہ صرف کہانیاں ہی نہیں بلکہ خون سے لکھی گئی تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ ہیلیلویا۔ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں ان 12 خواریوں کی جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کی تعلیم کو دل سے سنا اور اس کے مشن کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ ہیلیلویا۔ پریز جیسس۔ چاہے اس کے بدلے میں انہیں جیل میں رہنا پڑا، کوڑے کھانے پڑے، صلیب پر چڑھنا پڑا، آگ میں جانا پڑا، تلوار سے کٹوایا جانا پڑا، سنسار کیا جانا پڑا۔ آج کی جو یہ لائیو سروس ہے، براڈ کاسٹ ہے، یہ کوئی عام معلومات والی سروس نہیں بلکہ ایمان کو جھنجھوڑنے والی ہے، تو آپ ضرور اس کو ایمان کے ساتھ سنیے گا۔ روح کو جلانے والی ہے، دل کو بیدار کرنے والی ہے، تاکہ ہم مسیح میں آگے بڑھیں اور انجیل کو پھیلائیں۔ ہیلیلویا۔ جب یسوع مسیح کو صلیب دی گئی، جیسے آپ سبھی جانتے ہیں، گزشتہ ہفتوں میں ہم نے جو ہے یسوع مسیح کی مصلوبیت کو سیلیبریٹ کیا، ریزریکشن کو سیلیبریٹ کیا۔ یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بعد لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، مگر وہ 12 آدمی جنہیں ہم شاگرد کہتے ہیں، وہ خدا یسوع مسیح کے منصوبے کو پوری دنیا میں لے کر گئے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا انجام کیا ہوا ہے؟ جیسے کہ اوپننگ سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا ہیڈ لائن کا، لیکن ابھی ہم ڈیٹیل میں جانے والے ہیں کہ وہ کیسے اور کیوں شہید ہوئے اور کس نے انہیں مارا۔ تو اگر آپ کے پاس اپنی بائبلز ہیں، نوٹس ہیں، کاپی پینسل ہے، تو آپ انہیں اپنے پاس رکھیں۔ اور کہاں پر ان کی قربانیوں کے وسیلہ سے جو ہے کیا کیا فائدے پہنچے، ان کی قربانیاں جو ہیں وہ بے فائدہ نہیں تھی کہیں۔ ہیلیلویا۔ پطرس کو الٹی صلیب کی شہادت، یعقوب کا گردن کاٹا جانا، برتلمائی کی سکن کا اتارا جانا، شمعون کی سنساری، اور یہاں تک کہ اس یہودا کی کہانی جس نے بوسہ لیا مگر دھوکہ دیا۔ تو پورا دھیان کے ساتھ اور دل کو اس براڈ کے ساتھ لگاتے ہوئے ابھی جو ہم شیئرنگ کرنے والے ہیں ان شہادتوں کے بارے میں ہے جو آپ کو لرزا دیں گی، کیونکہ جب میں اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہی تھی اور آئی واز گیٹنگ گوز بمپس کہ کس کس دور سے یہ شہید جو ہے ہو کر گزرے تھے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ کے ایمان کو مضبوطی بھی ملے گی اس ٹاپک کے وسیلہ سے، کیونکہ جنہیں ہم رسول کہتے ہیں وہ در حقیقت قربانی کی چٹانیں ہیں جن کی بنیاد پر آج ہمیں ایمان قائم نظر آتا ہے۔ اگر انہوں نے پیغام نہ پہنچایا ہوتا تو ہم تک نجات نہ پہنچ پاتی۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان مردوں کی حقیقت جن کی زندگی آج بھی آسمان پر گواہی دیتی ہے کیا ہے؟ آج اس براڈ کو اینڈ تک سنیے گا، کیونکہ بہت سے ہمارے بہن بھائی اپنا کنٹریبیوشن دیں گے شیئرنگ کے وسیلہ سے، خدائے روح القدس کی ہدایت میں رہتے ہوئے، اور خود کو یسوع مسیح کے مشن میں شامل کرتا ہوا آپ محسوس پائیں گے۔ ہیلیلویا۔ تو میں آپ سب کی اٹینشن لینے کے لیے کہوں گی کہ آپ نیچے کمنٹ کریں کہ خداوند مجھے بھی اپنے مشن میں شامل کر دے۔ I want to be part of your mission۔ ہیلیلویا۔ آپ بھی خداوند کے مشن کا حصہ بن جائیں، جیسے شاگرد خداوند کے مشن کا حصہ بنے کہ وہ یسوع کی صلیب کو قوموں تک، امتوں تک، قبیلوں تک لے کر گئے، نجات کو وہاں تک لے کے گئے اور بتھیری جانوں کو آسمان کی بادشاہت کا حصہ بنایا۔
تو آئیں ان شاگردوں کے سفر کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہم بات کریں گے مقدس شمعون پطرس پیٹر۔ پطرس وہ شاگرد ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کا 3 بار انکار کیا، اور اس حوالے کو واقعے کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے جو ہے پڑھا تھا گزشتہ ہفتوں میں۔ لیکن بعد میں اپنی زندگی یسوع مسیح کے لیے ایسے دے دیتے ہیں پطرس کہ کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پطرس کا اصل نام شمعون تھا، وہ ماہی گیر تھا، مگر یسوع مسیح نے اسے پطرس یعنی چٹان کا لقب دیا، کیونکہ وہ کلیسیا کی بنیاد بننے والا تھا۔ ہیلیلویا، پریز جیسس۔ متی کی انجیل 16ویں باب میں لکھا ہے کہ تو پطرس ہے اور میں اس چٹان پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ پطرس نے یسوع کے ساتھ سمندر پر چلنا سیکھا، معجزے دیکھے اور اس کے بہت ہی قریب رہا۔ جب وہ یسوع مسیح گرفتار ہوئے تو سب سے پہلے پطرس نے خوف میں آ کر 3 بار خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا۔ لیکن جب اس کی آنکھ یسوع مسیح سے ملتی ہے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اس کا دل حقیقی شاگرد بن جاتا ہے خدا یسوع مسیح کا۔ شکست سے وفاداری کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ہیلیلویا، پریز جیسس۔ اور پطرس وہی شاگرد ہیں جنہوں نے عید پینتیکوست کے دن کھڑے ہو کر واز کیا اور 3000 لوگ ایمان لائے۔ ہیلیلویا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے پطرس رسول کے وسیلہ سے کہ پہلے ہی واز میں جو ہے جب وہ کھڑے ہو کر منادی کر رہے ہیں کہ 3000 جو ہیں آسمان کی بادشاہت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ بغیر ڈرے روم، یروشلم، انطاکیہ میں انجیل سناتے رہے، قید خانہ میں پڑے، مارے گئے، دھمکیاں لگائی گئی، لیکن کچھ بھی انہیں انجیل کے پرچار سے روک نہ پایا۔ رومی بادشاہ نیرو کے دور میں پطرس کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب اس کو صلیب پر چڑھانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کہا، اور اس کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے بیکاز دیٹس اے ہائی لائٹ، اس نے کہا میں اپنے خداوند کی طرح مرنے کے لائق نہیں، مجھے الٹی صلیب پر چڑھایا جائے، اور اسے الٹا مصلوب کر دیا گیا۔ اور میں اس بات کو بتانا چاہتی ہوں ایز اے پرسنل ٹیسٹیمنی، جب میں اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہی تھی اور میں نے خدا سے معافی مانگی بیکاز چائلڈہڈ سے لے کے ٹین ایج تک ٹل ٹوڈے جب ہم ڈفرینٹ طرح کے کراسز دیکھتے ہیں اور ہم بڑا غصہ کرتے ہیں کہ یہ اس صلیب کو انہوں نے کس طرح بنا دیا، کیا بنا دیا ہے، لیکن جب ہم شاگردوں کو اسٹڈی کرتے ہیں دین وی نو کہ دے آر ریپریزینٹنگ دوز ڈسائپلز، اپوسٹلز جو ہیں، جس طرح سے اپوسٹلز کو صلیبوں پر چڑھایا گیا اسی طرح سے جو ہے وہ صلیبیں مشہور ہوتی چلی گئیں۔ آمین۔ تو جو پطرس ہیں ان کو الٹی صلیب پر چڑھایا گیا اور اسے الٹا مصلوب کر دیا گیا، سر نیچے پاؤں اوپر۔ یہ قربانی صرف جسم کی نہیں بلکہ عاجزی اور محبت کی انتہا تھی۔ ہیلیلویا۔ پطرس کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ گناہ کے بعد بھی واپسی ممکن ہے۔ خدا ٹوٹے ہوئے دل کو شاگرد بنا سکتا ہے۔ ایمان کا انجام جو ہے وہ صرف لفظوں سے نہیں بلکہ اعمال اور قربانی سے ہوتا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آج آپ پطرس جیسے بننا چاہتے ہیں جو گر گیا تھا مگر خدا کے فضل نے اسے دوبارہ کھڑا کیا؟ تو آپ نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں کہ خداوند میرے دل کی قربانی کو چھو
ताकि मैं भी लोगों में तेरी अंजील की बशारत करूं। हालेलुया, प्रेज जीसस। अगला जो शागिर्द है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मुकद्दस यूहन्ना, अपोस्टल जॉन। ये वो शागिर्द है जिससे यीशु मसीह मोहब्बत करता था, और ये बहुत ही खूबसूरत जब इनकी ज़िंदगी को स्टडी करते हैं कि ये वाहिद शागिर्द है जिनके बारे में यीशु मसीह की मोहब्बत का इजहार हमें वाज़िया नज़र आता है कि ये वो शागिर्द हैं जिनसे यीशु मसीह मोहब्बत करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोहब्बत का रसूल यूहन्ना कितनी बड़ी बड़ी आजमाइशों से होकर गुजरा था? ये वो वाहिद शागिर्द हैं जिसको मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी बताया कि जिनकी जो मौत है वो कुदरती मौत से हुई, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं था कि उन्होंने अंजील का प्रचार करने में किसी भी तकलीफ को बर्दाश्त ना किया। यूहन्ना जब्दी का बेटा और यकूब का भाई था। पतरस के साथ वो यीशु मसीह के करीब तरीन शागिर्दों में से एक थे, और यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी माँ को इस शागिर्द के हवाले सौंपा था, क्योंकि यीशु मसीह इस शागिर्द से मोहब्बत करते थे। दैट्स मीन के जो यूहन्ना था वो ट्रस्टवर्दी था, इसी वजह से खुदावंद ने अपनी माँ को जो है इस शागिर्द की सपुर्दगी में दिया। सलीब पर लटके हुए भी यीशु मसीह इस शागिर्द के दिल को जानते थे, और वो अपनी माँ मरियम को इस शागिर्द के हवाले कर रहे हैं। यूहन्ना का पैगाम जो है मोहब्बत, सच्चाई और रोशनी का है। जब आप नए अहदनामा को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है। उसने यूहन्ना की अंजील 3 खतूत लिखे, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना का खत, और उसके साथ साथ मकाशवा की किताब भी लिखी, जो तमाम दुनिया को खुदा की मोहब्बत और मंसूबे का पैगाम देती है। इब्तदाई रवायात के मुताबिक जो हैं यूहन्ना को रोम ले जाया गया और उबलते हुए तेल में डाला गया। बीइंग अ फीमेल मैं किचन में काम करती हूँ, और कभी ना कभी हाथ जल जाता है, बाजू जल जाता है या कोई कट लग जाता है। आप इमेजिन करें कि यूहन्ना रसूल को, अपोस्टल जॉन को जो है उबलते हुए तेल में डाला गया है, लेकिन मुजज़ाना तौर पर वो बच गया है। और भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पर उन्होंने इज़ार-ए-सानी उठाई, लेकिन खुदावंद जो है, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना से एक अजीम काम लेना था, तो खुदावंद उसे ज़िंदगी पर ज़िंदगी देता चला गया। बच जाने के बाद जो यूहन्ना हैं उनको पितमस के सनसान पथरीले जजीरे में जला वतन कर दिया गया था। यहाँ उसने रोज़ा रखा, दुआ की, और रूहानी मुशाहदे के तहत जो है मकाशफा की किताब लिखी। हालेलुया। आप नीचे कमेंट्स करते चले जाएं ताकि मुझे पता हो कि आप बड़े इंटरेस्ट के साथ इसको सुन रहे हैं। ये हिस्ट्री की बात है, अर्ली चर्च के बारे में बात है, और हम सब की सीखने की बातें हैं। खुदा जिसे बचाता है उससे बड़ा काम भी लेना जानता है। हालेलुया। और यूहन्ना से हम ये भी सीखते हैं कि तन्हाई में भी खुदा बोलता है। मोहब्बत का रास्ता आसान नहीं, लेकिन हमेशा बाबरकत होता है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अगर आप जलावतनी, तन्हाई या आजमाइश से गुजर रहे हैं आपकी इंकरेजमेंट के लिए, तो आप याद रखें कि यूहन्ना की तरह खुदा आपको अलग करके इस्तेमाल कर सकता है। नीचे ज़रूर कमेंट लिखें कि खुदा आजमाइश में भी मेरे साथ है, ताकि मैं लोगों के लिए हौसला अफजाई का बाइस बनूं, जैसे यूहन्ना रसूल दूसरे ईमानदारों के लिए हौसला अफजाई का बाइस बना। हालेलुया।
सिस्टर जी मेरे कमेंट्स म्यूट है, उन्हें अनम्यूट कर दें प्लीज। जी सिस्टर जी श्योर। उसके बाद जो है हम तीसरे शागिर्द के बारे में सीखेंगे। मुकद्दस याकूब, अपोस्टल याकूब जो है वो पहला शागिर्द था जिसने अपनी जान देकर साबित किया कि यीशु की राह सच्ची है। हालेलुया। तो अगर आपसे कोई जो है सवाल पूछे कि कौन सा पहला शागिर्द था जिसने जो है अपनी जान यीशु के लिए दी, तो आप बता सकते हैं कि वो याकूब थे जिन्होंने जो है यीशु की राह में, सच्चाई की राह में अपनी जान दे दी। हालेलुया। यीशु मसीह का खामोश सिपाही और ये पहला शहीद कहलाया। याकूब जो है वो जब्दी के बेटे हैं और यूहन्ना के भाई थे। वो उन शागिर्दों में से थे जो यीशु मसीह के सबसे ज्यादा करीब रहे हैं। पतरस, यूहन्ना, याकूब। वो माहीगीर था मगर खुदा ने उसको इंसानों का शिकारी बना दिया। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। याकूब और उसके भाई यूहन्ना को यीशु ने रथ के बेटे भी कहा है क्योंकि उनमें गैरत और जज्बा थी। दोनों भाइयों को रथ के बेटे कहा गया क्योंकि वो गैरतमंद थे, जज्बे से भरे हुए थे। एक मौका ऐसा भी था, एक मौके पर उन्होंने एक गांव को जलाने की इजाजत भी मांगी थी यीशु मसीह से, लेकिन यीशु ने उन्हें नरम दिल बनना सिखा दिया। हालेलुया। यीशु ने याकूब ने ये सब कुछ सीखा और फिर बगैर बदला लिए अपनी जान दे दी। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो जज्बाती हैं, बड़े जोशीले होते हैं? खुदावंद उन लोगों के दिलों को भी मुकद्दस याकूब के दिल की तरह नरम करना जानता है। और जब वो खुदावंद तब्दीली लाता है तो वही लोग जो हैं खुदावंद की राह में अपनी जिंदगियां दे देने से दरेग नहीं करते। हालेलुया। अमाल 12वें बाब में लिखा है कि हेरोदिस बादशाह ने याकूब को तलवार से कत्ल करवाया। ये जो है अंजील की तरह दी जाने वाली जान नहीं थी और ये गवाही पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। कदीम रवायात के मुताबिक जब याकूब को मौत के लिए ले जाया जा रहा था, और ये एक टेस्टिमनी है ड्यूरिंग हिज परसिक्यूशन, जब उसको मारा जा रहा है तो उसके मारे जाते हुए ही जो है गवाही जन्म ले रही है। कदीम रवायात के मुताबिक देखने को मिलता है। तो एक सिपाही उसकी दलेरी से मुतासिर होकर ईमान ले आया। हालेलुया। और उसने कहा मुझे मार डालो क्योंकि मैं भी अब मसीह का हूं। और वो भी साथ ही शहीद हुआ। याकूब रसूल के साथ जो ईमान लाने वाला था वो भी शहीद हुआ। ईमान कभी तन्हा नहीं मरता। जो यीशु के लिए खड़ा होता है वो दूसरों को भी उठाता है अपने साथ। प्रेज़ जीसस। जो शहादत है वो खुदा की बादशाहत की फतह का निशान है, नाकामी का नहीं। याकूब का खून पहला कतरा था जिससे कलीसिया की जमीन जो है वो तर हुई। हालेलुया। और ये हमारे लिए सीखने की बात है, खुशी की बात है कि याकूब ने कितना बड़ा जो है कदम उठाया दूसरों के लिए, कि एक एग्जाम्पल बन गया कि उस अपनी जान को भी देने से दरेक नहीं किया। अगर आपको याकूब रसूल की वफादारी पसंद आई है तो आप जरूर नीचे कमेंट्स में लिखें कि खुदावंद मुझे भी ऐसा ईमान दे। आई वॉन्ट टू डाई लाइक याकूब। याकूब की तरह मैं अपनी जिंदगी को गुजारना चाहता हूं और मरते मरते भी गवाही पैदा करना चाहता हूं कि लोग तेरी बादशाहत में शामिल होते चले जाएं। हालेलुया। Praise Jesus. Thank you Jesus. उसके बाद जो चौथे रसूल हैं फिलिप्पस के बारे में हम बात करेंगे। मुकद्दस फिलिप्पस रसूल जो हैं,
ایک ایسا شخص جس نے غیر قوموں تک یسوع مسیح کا پیغام پہنچایا. اور میں یہاں پر ایک چھوٹا سا پاز لینا چاہوں گی. میں ہیوج سپورٹر ہوں جو اپولوجیٹک منسٹری کرتے ہیں اور یہاں ٹک ٹاک پر بھی جو برانڈز کو رن کرتے ہیں, دوسری قوموں میں انجیل کا پرچار کرتے ہیں, بیکاز دے آر فالوئنگ دا اپوسٹلز لیڈ. وہ رسولوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں کہ غیر قوموں میں انجیل کی بشارت کر رہے ہیں. وی ریئلی اپریشیٹ یو. پریز جیسس. تو جو مقدس فلپس رسول ہیں, انہوں نے غیر قوموں میں خداوند یسوع مسیح کا پیغام پہنچایا, جس نے سچ کے لیے بولنا نہ چھوڑا اور آخر کار اپنی جان بھی دے دی. یہ ہے فلپس کی کہانی, جس کی خدمت کی, سچ کی اور شہادت کی مثال ہمیں ملتی ہے. فلپس ان 7 خادموں میں سے ایک تھا جسے رسولوں نے ابتدائی خدمت کے لیے چنا. اگر آپ اعمال کی کتاب ارلی چرچ کی اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس واقعے کی جو ہے تصدیق ملتی ہے. وہ نہ صرف غریبوں کی خدمت کرتا تھا بلکہ وہ ایک عظیم مبشر بھی تھا. تو جتنے مبشر ہیں, ایونجلسٹ ہیں, ان کے لیے بھی ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں, بیکاز دے آر فالوئنگ لیڈ آفٹر اپوسٹل فلپ. ہاللیلویا. فلپس کی خوشخبری کی خدمت سامریا اور دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئی, اور ایک دن خدا نے خود اس کو بیابان کی راہ میں بھیجا. اور اس واقعے کو آپ نے بائبل میں پڑھا ہی ہوگا. وہاں پر اس کی جو ایک ملاقات ہے حبشی خوجہ سے ہوتی ہے, اعمال کی کتاب میں اس کا ذکر ہے. اور وہ جو ہے یسایہ نبی کی کتاب پڑھا ہوتا ہے پر سمجھ نہیں پا رہا ہوتا. فلپس نے اس سے فلپس جو ہے یسوع کی ہدایت کو پاتے ہوئے اسے خوشخبری سنانا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ شخص وہیں پر بپتسمہ لے کر ایمان میں شامل ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے, اور یہ ہم سب جو منسٹری میں, خدمت میں, ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ خداوند ہمارے کلام کو اس قدر جو ہے بابرکت بنا دے, اور انوائنٹنگ سے بھرا ہوا بنا دے, روح القدس سے بھرا ہوا بنا دے, کہ جب ہم خوشخبری کا کلام سنائے لوگوں تک تو لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگے اور پھر فور وہ بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں. کیونکہ ہمارے سامنے مقدس فلپس کی مثال ہے, شاگردوں کی مثال ہے کہ کیسے جب وہ کلام کرتے تھے اسی وقت اسی گھڑی لوگ جو ہیں وہ نجات قبول کرتے تھے اور بپتسمہ بھی لیتے تھے. ہاللیلویا. پریز جیسس. تو فلپس نے سامریا میں, اشدود میں, کیسریا میں اور دیگر علاقوں میں کلام سنایا. اسے فلپس مبشر بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اس نے غیر قوموں میں انجیل کی بشارت کی شروعات کی. He was the one who started the evangelism in جو ہے دوسری اقوام میں. ہاللیلویا. فلپس نے فریگیا میں غیر قوم پرست گورنر کو توبہ کی دعوت دی, اور یہ ہائی لائٹ ہے اس کی ٹیسٹمنی کی. جب گورنر کی بیوی ایمان لے آتی ہے تو جو گورنر ہے وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے, اور وہ فلپس کو پکڑوا دیتا ہے اور کوڑے لگواتا ہے, اور پھر فلپس کو مصلوب کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ مصلوب ہونے کے درمیان بھی جو ہیں فلپس یسوع مسیح کی خوشخبری کی بشارت کر رہے ہیں جب تک اس کی روح خدا کے پاس نہ چلی گئی. مطلب خدمت جو ہے وہ صرف لفظوں تک محدود نہیں ہے, زندگی کے ہر ایک عمل سے ہم نے بشارت کا کام جاری رکھنا ہے. کبھی کبھی خداوند ہمیں سنسان رستوں پر لے چلتا ہے تاکہ وہ کسی ایک جان کو ہمارے وسیلہ سے بچا پائے. سچائی کے لیے قربانی دینا, سیکریفائس کرنا, یہ واجب ہے کیونکہ آخر میں جو ہے وہ فتح میسر ہوتی ہے. ہاللیلویا.
मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नीचे कमेंट्स भी लिखिए यस और नो, क्या आप भी खुदा के हुक्म पर फिलिप्पस की तरह बेयाबान में जाने के लिए तैयार हैं? कमेंट करें यस और नो। अगर फिलिप्पस की वफादारी ने आपको मुतासिर किया है तो लिखें, ऐ खुदावंद, कमिटमेंट करें, ऐ खुदावंद मुझे भी फिलिप्पस जैसी वफादारी से भर दे। हालेलुया, प्रेज जीसस, थैंक यू जीसस। पांचवा जो शागिर्द है या जो पांचवा रसूल है बरतुलमाई के बारे में हम सीखेंगे। हर शागिर्द ने जुबानी मोर्जात नहीं किए, जितने भी शागिर्द हैं जुबानी मोर्जात नहीं सिर्फ हुए, कुछ ने खामोशी से खिदमत की है, बाज ने ऐसी शहादत पाई कि सुनकर आंखें भर आती हैं। अभी हम बात करने वाले हैं बरतुलमाई के बारे में, एक ऐसा रसूल जिसने बगैर आवाज के आसमान को गवाह बनाया। बरतुलमाई जो है 12 शागिर्दों में से एक थे। बाज उलमा का मानना है कि ये वही नतनएल था जिसे यस्सु ने कहा था यूहन्ना पहले बाब की 47वीं आयत में, देखो सच्चा इस्राएली वही है जिसमें मुनक्कर नहीं है। ये जुमला उसकी साफ दिली, सच्चाई और खालिसन ईमान का अक्स था। बरतुलमाई के बारे में अंजील में ज्यादा तफसील नहीं मिलती, लेकिन बाज रवायात के मुताबिक या हिस्ट्री की बुक्स के मुताबिक जो है उसने हिंदुस्तान में, आर्मेनिया में और ईरान में खिदमत की। वो चुपचाप लोगों तक खुशखबरी पहुंचाता चला गया। और ये उन बहन भाइयों के लिए इनकरेजमेंट की बात है जो पसे पर्दा खिदमत करते हैं, जो बैक ऑफ द स्टेज खिदमत करते हैं, जिन्हें शोहरत से कोई शाहूकार नहीं है। हालेलुया, ना शोहरत ना शोर, सिर्फ अतायत और कुर्बानी। वो ऐसी सरजमीनों में गया जहां गैर कौमों का राज था, जहां बुतों की प्रस्तिश की जाती थी, वहां उसने यस्सु मसीह का नूर पहुंचाया। हालेलुया, प्रेज जीसस, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ये भी कहा जाता है कि उसने आर्मेनिया के बादशाह को ईमान की दावत दी थी और बादशाह की शिफा के बाद बहुत से लोग मसीहियत में शामिल हो गए। जब मुकामी पुजारियों ने देखा कि उनकी जो मुकामी ताकत है वो कमजोर हो रही है, तो उन्होंने बादशाह को वर्गलाया, बरतुलमाई को गिरफ्तार किया गया। फिर गौर कीजिएगा फिर क्या हुआ, फिर उसकी जिल्द यानी उसकी जो स्किन है, उसकी जो बदन की जो जिल्द है, उसको उतार कर उसे जिंदा जलाया गया। और ये सब सिर्फ इसलिए कि वो यस्सु का सच्चा गवाह था, खामोशी में भी अजमत को पा गया। हालेलुया, खिदमत जो है वो शोहरत के लिए नहीं, खुदा की रजा मर्जी के लिए होनी चाहिए। अगर हम सच पर खड़े हैं तो दुनिया के जुल्म भी हमें खामोश नहीं कर सकते। बरतुलमाई की शहादत हमें याद दिलाती है कि बाज गवाह खामोश होते हैं, मगर उनका खून चीख चीख कर आसमान से गवाही देता है। अगर आप पैनलिस्ट नीचे बैठे हुए फारियू पर जितने भी हैं, अगर आप इस खादम से मुतासिर हुए हैं तो कमेंट लिखें कि खुदावंद मेरी खिदमत में भी सच्चाई और कुर्बानी को ले आ। आमीन, प्रेज जीसस। खुदावंद हमारी खिदमत में सच्चाई और कुर्बानी को लेकर आए। जो छठा रसूल है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, मुकद्दस तोमा रसूल है। नीचे कमेंट कीजिएगा यस और नो, अगर आप में से कभी किसी ने
किसी बात पर शक किया है? यस और नो? कभी सवाल उठाया? तो जान लें कि ये जो रसूल है ये भी ऐसा ही रसूल है जिसने शक किया, इसको शक करने वाला रसूल कहा जाता है। लेकिन जब उसने यकीन किया तो उसने अपनी जिंदगी खुदा के हवाले कर दी और ऐसे हवाले की हता के शहादत तक जो है कबूल किया, शहादत का जामा भी पी लिया। हालेलुया, प्रेज जीसस। तो जो 12 रसूल हैं उनमें से एक रसूल जो है वो तोमा रसूल थे। उसे हम अक्सर शक करने वाले के तौर पर याद करते हैं। जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तो तोमा ने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान ना देख लूं हरगिज ईमान ना लाऊंगा। तोमा का सफर हम सब के दिलों की नुमाइंदगी करता है, जहां सवाल होते हैं मगर दिल खुदा को ढूंढता है। यीशु ने उसे मुलामत नहीं किया। सवाल करना अच्छा है, दैट्स राइट। और मैंने पहले भी इसके बारे में कहा था कि आई एम सो ग्रेटफुल कि तोमा का वाकया जो है वो बाइबल में लिखा गया, ताकि जो सवाल उसने किया वो ऑलरेडी आंसर दे दिया गया है। अब हमें सवाल करने की ज़रूरत नहीं। और इस बात की भी तस्दीक की गई है कि जब तोमा ने जो है यीशु मसीह को देखा, और जितने जो गैर अक़वाम के लोग हैं जब इस वाक़े को पढ़ते हैं बिलीव के वो बरकत पाते हैं, क्योंकि तोमा ने तस्दीक करवाई है कि यीशु मसीह के हाथों में सुराख थे, पाँव में सुराख थे। वो रियल में मसरूफ हुए और रियल में वो जो है अपने शागिर्दों पर जाहिर भी हुए। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि तू मुझे देखकर ईमान लाया, मगर मुबारक हैं वो जो बगैर ईमान देखे जो है ईमान लाए। हालेलुया। और बगैर देखे ईमान लाने वालों में से आपका भी शुमार है, मेरा भी शुमार है। हम मुबारक लोग हैं क्योंकि यीशु मसीह खुद हमारे बारे में फरमाते हैं। हालेलुया। तो नीचे जो है ज़रूर लिखें आमीन। जब ऐसे ईमान की बातें हो तो आपके अंदर से आमीन निकलना चाहिए, हालेलुया निकलना चाहिए, प्रेज जीसस निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे दिल शादमानी से भरे हैं कि खुदावंद हमें मुबारक कहता है। हालेलुया। रवायात के मुताबिक है कि तोमा ने हिंदुस्तान तक सफ़र किया, जहां उसने खुदा का कलाम सुनाया, कलीसियाएं कायम की और हजारों को बपतिस्मा दिया। आज भी भारत में इंडो पाक भी आप उसको कह सकते हैं, वहाँ तोमा की कलीसिया की खिदमत की गवाही मिलती है। जब तोमा ने जनूबी हिंदुस्तान में एक हिंदू बादशाह को यीशु की तालीम दी। देखें कैसे कैसे अजीम खुदा के पैरोकार हैं कि बादशाहों में जो है इंजील का प्रचार कर रहे हैं। और मैं जब इसको स्टडी कर रही थी आई वाज सो एक्साइटेड कि इस कदर रूहुल कुद्स की दिलेरी इन सूरमाओं के अंदर है कि बादशाहों के आगे भी हाजिर होने से और बात करने से ये दरेग नहीं कर रहे, और बड़ी दिलेरी से जो है वो दावत दे रहे हैं कि यीशु मसीह की बादशाहत में शामिल हो जाएं। तो जब दावत दे रहे हैं तोमा रसूल बादशाह को, जनूबी हिंदुस्तान के बादशाह को, तो जो मजहबी रहनुमा हैं उनके वो नाराज हो जाते हैं। रवायत ये भी है कि उसे जो है तोमा रसूल को पीछे से, पीठ के पीछे से उनके ऊपर वार किया जाता है नेज़े के साथ, जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं, लेकिन उनका ईमान जो है वो खड़ा रहता है। हालेलुया। और तोमा की कहानी से हम ये भी सीखते हैं कि शक का मतलब जो है वो ईमान का खात्मा नहीं बल्कि सच की तलाश है। खुदा हमें हमारे शक में भी ढूंढता है। जो एक बार सच को जान लेता है वो फिर अपनी जान भी खुदा के लिए दे सकता है। अगर आप इस वक्त किसी भी जिंदगी के हिस्से में हैं, शक में मुतबला हो चुके हैं,
तो तोमा की कहानी को जो है अपने आगे रखी है। उसे सच्चाई मिली, वो सवाल करता रहा और वो जान देकर गवाही बन गया। हालेलुया। अगर आप तोमा रसूल की जिंदगी से मुतासिर हुए हैं, अगर अपोस्टल थॉमस लाइफ हैव इम्प्रेस्ड यू, तो आप जरूर नीचे कमेंट्स में लिखिए कि खुदावंद मेरे शक को ईमान में बदल दे। हालेलुया। खुदावंद हमारे शक को ईमान में बदल दे, जैसे खुदा ने तोमा के शक को मजबूत ईमान में बदल दिया। प्रेज जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभी हम एक बहुत प्यारे अपोस्टल के बारे में बात करने वाले हैं। सातवां अपोस्टल जो है, सातवें रसूल जो है, मत्ती रसूल के बारे में बात करेंगे। मैथ्यू, अपोस्टल मैथ्यू के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा आदमी जो है, दुनिया जो है उसे एक लालची और दगाबाज और गुनाहगार शख्स जानती थी, मगर यीशु मसीह ने उसे कहा मेरे पीछे आ। कैसी खूबसूरत घड़ी होगी जिस शख्स को खुदावंद खुद दावत दे रहा है कि मेरे पीछे आ। एक ऐसा आदमी जिसका जो माजी है, बैकग्राउंड जो है वो डार्क है, तारीख है, मगर मुस्तकबिल जो है अंजील का चिराग बन गया है। मत्ती, जिसे लावी भी कहा जाता है, एक महसूल लेने वाला था, यानी रोमी हुकूमत के लिए टैक्स जमा करता था और अक्सर बदनवान समझा जाता था। मगर जब यीशु मसीह ने हमेशा की जिंदगी का राज खोल दिया तो उसे बुलाया, तो उसने, अब उसकी ताबियादारी देखें कि उसने सब कुछ छोड़कर उसकी पैरवी शुरू कर दी। हालेलुया। मत्ती जानता था कि उसे लोग हकीर समझते हैं, लेकिन यीशु की मोहब्बत ने उसे मुकम्मल बदल दिया और उसी दिन से वो माजी के बंधनों से आज़ाद हो गया था, अपने पास्ट से जो है बिल्कुल आज़ाद हो गया था जब उसने यीशु मसीह की पैरवी करना शुरू की। मत्ती ही वो शागिर्द था जिसने पहली अंजील लिखी। अगर कोई भी आपसे पूछे, संडे स्कूल का क्वेश्चन है कि पहली अंजील किस रसूल ने लिखी, तो आप बता सकते हैं कि वो मत्ती रसूल थे। हालेलुया। उसकी अंजील में खास तौर पर जो है हमें यहूदियों के लिए जो है पता चलता है कि ये अंजील लिखी गई है ताकि वो जान सकें कि यीशु ही अज़ली और अबदी बादशाह है, जिसका वादा पुराने अहदनामे में भी किया गया है। प्रेज़ जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। रवायात के मुताबिक है, हिस्ट्री के मुताबिक, मत्ती जो रसूल है वो इथोपिया में, फारस में और मैकेडोनिया के इलाकों में जो है खिदमत के लिए गए। वो बादशाहों के दरबारों में गए और यीशु मसीह की बादशाहत का कलाम सुनाते रहे। कुछ रवायात ये भी कहती हैं कि उसे हबशा में शहीद किया गया, कुछ के मुताबिक जो है उसे तलवार से शहीद किया गया, क्योंकि उसने एक बादशाह को तौबा की दावत दी थी। अब आप गौर करें कि जितने भी हमने पीछे रसूलों की जिंदगी के बारे में पढ़े वो बादशाहों को दावत दे रहे हैं। जैसे मत्ती रसूल भी हम सीख रहे हैं कि रवायात के मुताबिक वो बादशाह को तौबा की दावत दे रहे हैं, और जब तौबा की दावत दी जाती है तो दैट्स अ क्लियर साइन कि आप रिपेंटेंस की दावत दे रहे हैं, आप उसे अपने गुनाहों का इकरार करने की दावत दे रहे हैं, आप उसे यीशु मसीह को कबूल करने की दावत दे रहे हैं। माजी हमारा मुस्तकबिल तय नहीं कर सकता। यीशु जिन्हें चुनता है, जो दुनिया के नजदीक गुनाहगार होते हैं, कलाम लिखने वाला उन्हें बनाता है। हालेलुया।
متی رسول کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا گناہگاروں کو چھو کر انہیں مقدس بنا سکتا ہے. تو کبھی بھی کسی پر انگلی نہ اٹھائیں اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص بڑا گناہگار ہے. بیکاز دیر از آلویز ہوپ. یسوع مسیح میں زندہ امید ہے، بلکہ کنفرمیشن ہے. جیسے خدا نے متی کی زندگی کو بدلا اور اسے مقدس بنا دیا، خداوند دنیا میں جتنے گناہگار ہیں ان کے اندر بھی ابدی امید کو پیدا کر سکتا ہے اور اپنے کلام کی بشارت کے لیے انہیں استعمال کر سکتا ہے. ہیلیلویا. اگر متی جیسا شخص جو ہے انجیل لکھ سکتا ہے تو آپ بھی خدا کی عظیم خدمت کا جو ہے وہ ذریعہ بن سکتے ہیں. اگر آپ اس بات سے ایگری ہیں تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ خداوند میرا ماضی لے، میں اپنے ماضی کو، اپنے پاسٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں اور تو اسے مستقبل میں مقدس بنا دے، ہولی بنا دے، میری زندگی کو پاک کر دے متی رسول کی طرح. ہیلیلویا. پریز جیسس. اگلا جو شاگرد ہے، اگلے جو رسول ہیں جس کے بارے میں ہم سیکھنے کو ہیں، وہ مقدس یعقوب ہیں. کچھ شاگرد صرف دنیا کے سامنے مشہور ہوتے ہمیں نظر آئے اور کچھ آسمان پر جاتے ہوئے. یعقوب بن حلفی ایسا ہی تھا. لوگوں کو اس کا نام یاد نہیں کیونکہ مشہور شاگردوں کے اپوسٹلز کے نام لوگوں کو یاد رہ گئے، لیکن کچھ ایسے بھی شاگرد ہیں جیسے یعقوب ہیں جن کا نام بہت کم لوگوں کو یاد رہتا ہے، لیکن خدا کے دربار میں وہ شہیدوں کی صف میں شامل ہوتا ہمیں نظر آیا. یعقوب بن حلفی کو یعقوب چھوٹا بھی کہا جاتا ہے، چھوٹا یعقوب بھی کہا جاتا ہے. شاید وہ قد میں چھوٹے ہوں یا مقام میں دوسرے یعقوب سے کم مشہور ہوں، مگر ان کی جو وفاداری ہے، خدمت جو ہے، کسی سے کم نہیں تھی. یہ وہی یعقوب ہیں جن کا ذکر ہمیں مرکز کی انجیل میں، متی کی انجیل میں، رسولوں کی سیر فہرست میں ملتا ہے، جسے ہم نے میٹنگ کے شروع میں جو ہے تلاوت بھی کی تھی اس حوالے کی. یعقوب کے بارے میں تفصیلی معلومات تو ہمیں نہیں ملتی، نہ وہ معجزات کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، نہ بڑے بڑے واعظ لکھے ہیں، اور نہ ہی انجیل کی کوئی کتاب اس سے جو ہے منسوب ہے. تو بھی وہ یسوع کے ساتھ، جو یسوع کے 12 شاگرد ہیں ان میں سے چنے گئے اور اپنی جان آخر تک یسوع کے لیے انہوں نے جو ہے یسوع مسیح کے نام لگائی. ہیلیلویا. سیکھنے کی بات یہ ہے کہ خدا ہر اس دل کو یاد رکھتا ہے جو وفادار ہے، چاہے دنیا اس کو جانے یا نہ جانے. اور جب میں ان کی زندگی کو اسٹڈی کر رہی تھی آئی واز ہائیلی انکریجڈ بائی دیٹ کہ ہماری جو خدمت ہے وہ ہمارے اپنے پروموشن کے لیے نہیں بلکہ خدا کی بادشاہت کی وسعت کا کام بڑھانے کے لیے ہونی چاہیے. چاہے لوگ ہمیں جانے یا نہ جانے، our job is to continue keep sharing the gospel at any cost. Hallelujah. روایات کے مطابق ہے کہ یعقوب بن حلفی نے مصر کے علاقوں میں خدمت کی. وہ غیر قوموں کے بیچ یسوع مسیح کا کلام سناتا رہا. بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اسے ایک کافر ہجوم نے صلیب پر چڑھایا، جبکہ دیگر کے مطابق اسے جو ہے وہ سنسار کیا گیا کیونکہ اس نے جھوٹے دیوتاؤں کی مخالفت کی تھی. خدمت کی اصل قیمت شہرت میں نہیں بلکہ وفاداری میں ہے. ہیلیلویا. پریز جیسس. بلکہ وفاداری میں ہے. اور یہ میسیج اب پراسپر گاسپل شیئرنگ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ خدمت جو ہے وہ شہرت میں نہیں ہے بلکہ وفاداری میں ہے. جو گمنام ہے وہ آسمان پر پہنچایا جاتا ہے،
जब तक हम खुदा के साथ खड़े हैं, हम छोटे नहीं हैं। कोई भी खिदमत जो है वो छोटी नहीं है, क्योंकि जब आप खुदावंद के लिए अपनी जिंदगी देते हैं, उसकी राह में चलना शुरू हो जाते हैं, तो आपका मुकाम जो है वो आसमानी मुकामों में बड़ा हो जाता है। हालेलुया। याकूब बिन हौफी हमें याद दिलाते हैं कि हमें नाम बनाने के लिए नहीं, बल्कि यीशु के साथ खड़े होने की फिक्र होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके छोटे अमल को भी अजीम समझे, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और कह सकते हैं कि खुदावंद, मैं अपनी गुमराह राह को भी तेरी वफादारी में सौंपता हूँ। हालेलुया। सब कुछ खुदावंद के हाथों में सौंप दें। प्रेज़ जीसस। खुदा तेरा शुक्र हो। अगर आप में से कोई भी बहन भाई ऊपर पैनल में आना चाहता है, आप प्लीज ऊपर ज्वाइन करें। पैनल भरा हुआ अच्छा लगता है। इस ब्रॉड को शेयर करें, रीपोस्ट करें, अपनी स्टोरी पर लगाएं, ताकि ये जो इतनी खूबसूरत अर्ली चर्च की इंफॉर्मेशन है, अपोस्टल्स की इंफॉर्मेशन है, स्टडी है, वो बहुत से बहन भाइयों के कानों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर कंटिन्यू योर सपोर्ट टू दिस ब्रॉड। खुदा आपको बहुत बहुत ज्यादा बरकत से नवाजता चला जाए। हालेलुया। अगले जो अपोस्टल हैं या जो रसूल हैं, मुकद्दस तद्दी नावे जो रसूल हैं, उनके ऊपर हम बात करने को हैं और सीखने को हैं। सब जो शागिर्द हैं वो बोलते नहीं, कुछ सिर्फ सुनकर दिल में मानते हैं। हम जानते हैं कि तद्दी की कहानी जो कम नजर आती है, मगर जो है मोहब्बत में वो रसूल जो हैं बहुत बहुत बड़े हैं। तद्दी को यहूदा बिन यकूब भी कहा जाता है और बाज अनाजील में लबी या तद्दी भी कहा गया है, ताकि उसे यहूदा अस्करियोती से अलग पहचाना जा सके। ये वही शागिर्द है जिसने यीशु से पूछा, खुदावंद, क्या तू अपने आप को हम पर जाहिर करेगा? और ये हाईलाइट है इस शागिर्द के बारे में कि उसने यीशु मसीह से पूछा था कि क्या तू अपने आप को हम पर जाहिर करेगा, दुनिया पर नहीं। इस सवाल में एक प्यार भरा दिल और अंदर की सच्चाई को जानने की जुस्तजू है। तद्दी अंजील में ज्यादा बात करते हुए हमें नजर नहीं आते, ना आवाज ना मोजज़ात, लेकिन उसके अंदर खालिस खुदा की चाहत हमें नजर आती है। ऐसे लोग खिदमत करते हैं दिखावे के बगैर, जो तद्दी रसूल जैसे हैं, खामोशी से लेकिन कुर्बानी के जज्बे से। रवायात के मुताबिक है कि तद्दी जो रसूल हैं, उन्होंने अरब, शाम, फारस के इलाकों में खिदमत की। वो सख्त मुखालफत के बावजूद यीशु मसीह का कलाम सुनाते रहे। और जब मैं उनकी जिंदगी के बारे में स्टडी कर रही थी, ये इनकरेजमेंट है हम सब के लिए। तद्दी रसूल की जो जिंदगी है कि चाहे जितनी भी मुखालफत है, चाहे जितनी भी रुकावटें हैं, मुश्किलात हैं, एज़ार आसानियाँ, परेशानियाँ, हमने इनकी एग्जाम्पल को अपने सामने रखना है और उन रुकावटों को, दुश्वारियों को चीरते हुए जो है अंजील की बशारत जो है बड़ी दलेरी के साथ करते ही चले जाना है। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। एक रवायत के मुताबिक जो है, जब उसने ईरान में एक बादशाह को, ईरान आजकल बड़ा जो है हाईलाइट्स है न्यूज़ में, तो देखें ये जो तद्दी हैं उन्होंने ईरान में खिदमत की। ईरान में एक बादशाह को मसीह पर ईमान लाने की दावत दी, तो मुखालिफिन ने उसे सलीब पर चढ़ा दिया और नेज़े मारे। इन चीज़ों को इमेजिन करना शुरू करें। ये बातें सिर्फ आपके ज़हनों के ऊपर से ना गुजरती चले जाएं, बल्कि आप ध्यान लगाना शुरू करें इन स्टोरीज पर। उसने ना सिर्फ सलीब को कबूल किया,
बल्कि शहीद होकर भी उसने मसीह से अपनी मोहब्बत को साबित किया। और ये उन लोगों के लिए जो कम बोलते हैं, वो अक्सर गहराई से मोहब्बत का इजहार करते हैं। हालेलुया। खामोश खिदमत भी जो है खुदा की नज़र में कीमती होती है। और अगर आप अपने चर्चिस में नज़र करें तो चर्चिस में बहुत से ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे जो बगैर कहे चर्चिस की खिदमत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मुख्तलिफ खिदमतें जो हैं वो निभाते चले जाते हैं। कभी उनके नाम मेंशन नहीं किए जाते, कभी उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, लेकिन वो वॉलंटरी जो है अपने कामों से, अपने बातचीत से, इंटरसेसर प्रेयर से जो है वो खिदमत करते ही चले जाते हैं। तद्दी की खिदमत भी हमें ऐसी ही नज़र आती है कि खामोशी भी जो है खुदावंद की, खामोश जो खिदमत है खुदावंद की नज़र में बहुत कीमती होती है। सच्चे सवाल करने वाला सच्चा जवाब पाता है। तद्दी की जिंदगी हमें सिखाती है कि खिदमत शोहरत से नहीं बल्कि खलूस से होती है। अगर आप भी जो हैं खुदा से दिल से सवाल करते हैं, और जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया कि सवाल करना जो है वो बुरी बात नहीं है, शक करना भी बुरी बात नहीं, बिकॉज दे हेल्प अस टू मेक स्ट्रॉन्ग आवर फेथ। हालेलुया। अगर आप भी खुदा से सवाल करते हैं तो यकीनन वो खुद आप पर अपना आप जाहिर करेगा। हालेलुया। जैसे पिछले दिनों में मैं मूसा फॉर यूट्यूब पर भाई एडम सीकर की जो है गवाही को सुन रही थी, और वो बता रहे कि कैसे उन्होंने खुदा को अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल किया गैर कौम में से। और आफ्टर रीडिंग अ होल बाइबल उनके दिल में इतने सवाल थे कि उन्होंने खुदा के हुजूर घुटने टेक दिए और खुदा से कहा कि मुझ पर अपना आप जाहिर कर, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। अगर तू जिंदा खुदा है तो मुझ पर अपना आप जाहिर कर। तो सवाल करना जो है वो बुरी बात नहीं, लेकिन सवाल जो है वो सच्चाई को जानने के लिए होना चाहिए। अगर सच्चाई से सवाल करेंगे तो सच्चाई से ही आपको जवाब मिलेगा। हालेलुया। अगर आप भी खुदा से दिल से सवाल करते हैं तो वो जरूर खुद को आप पर जाहिर करेगा। नीचे कमेंट्स में लिखें कि खुदावंद मुझ पर भी अपना चेहरा दिखा, मुझ पर भी अपना नूर चमका, मुझ पर भी अपना जलवा चमका। हालेलुया। और खुदावंद जरूर जो है ऐसा करेगा। प्रेज़ जीसस। थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन, योर सपोर्ट, आपके कमेंट्स का दैट्स मीन्स अ लॉट। अभी जो है हम 10वें रसूल की जिंदगी के बारे में सीखेंगे, और वो हैं मुकद्दस शमाउन कानवी। कुछ लोग जोश से जीते हैं, जैसे पतरस रसूल के बारे में भी है, कुछ जोश में जान दे देते हैं। हम बात करने वाले हैं शमाउन कानवी की, जो पहले कौम परस्त थे मगर फिर यस्सु के वफादार सिपाही बन गए। शमाउन को कानवी या गयूर कहा जाता है, और ये लक़ब जो है उनको दिया गया, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो गयूर तहरीक के कारकुन रहे होंगे। एक ऐसी यहूदी जमात जो रूमी हुकूमत के खिलाफ बगावत की हामी थी, यानी शमाउन एक बागी दिल रखता था। और आज भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में जो है बड़े जोशीले आपको नजर आते हैं। शमाउन कानवी भी ऐसी ही पर्सनैलिटी रखते थे, और वो जब ऐसी ही जो है पॉलिटिकल जमात का हिस्सा थे जो बगावत कर चुकी थी, जो अपने लोगों को आज़ादी के लिए, उनकी आज़ादी के लिए लड़ने को भी तैयार थे। लेकिन फिर क्या होता है, उनकी जो मुलाकात है यीशु मसीह से हो जाती है, और उसका जो जोश है, उसका
जो जोश है वो मोहब्बत, अमन और खिदमत में बदल जाता है। शमाउन वो शख्स था। हालेलुया, प्रेज़ जीसस, थैंक यू जीसस। जब यीशु मसीह का इनकाउंटर हो जाता है तो जिंदगियां जो हैं बागीपन से दूर होकर, जोशीलेपन से हटकर जो है मोहब्बत, अमन और खिदमत में बदल जाती हैं। जो शमाउन है वो अपने नजरियात के लिए जान भी दे सकता था, मगर जब उसने यीशु की सच्चाई को जाना तो वो अपनी तलवार को छोड़कर जो है सलीब उठाने वाला बन गया। हालेलुया, वो यीशु मसीह के उस पैगाम पर ईमान ले आया जिसमें दुश्मनों से भी मोहब्बत को सिखाया गया है। शमाउन कानवी ने जो है फारस, मिस्र और लीबिया के इलाकों में मनादी की। उसने उन्हीं अक़वाम में यीशु मसीह की सुलह की, खुशखबरी की मनादी की जहां पर कभी वो जंगो जदल में शमूलियत करता रहा है। कितनी खूबसूरत बात है कि जहां पर आप जंगे लड़ रहे हो वहीं पर जो है आप अमन, मोहब्बत और खुशखबरी की बिशारत कर रहे हो। प्रेज़ जीसस। और यहाँ पर मैं पाज लूंगी और इसको फैमिलीज के साथ रिलेटेड करेंगे कि वो लोग जो खानदानों में झगड़े का बाइस बनते हैं, तफरका डालते हैं, नफाक डालते हैं कलीसियाओं में, खानदानों में, मुल्कों में, लेकिन जब वही शख्स उनका रियल में यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर हो जाता है तो उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। तब वो भाईचारा लाते हैं, मोहब्बत फैलाते हैं, खुशखबरी फैलाते हैं, क्योंकि जो जिंदगी है वो बदल चुकी है। हालेलुया। रवायात के मुताबिक जो है उसे फारस में जो है जिंदा आरे से चीर कर मारा गया, क्योंकि उसने वहां के बुतों के खिलाफ कलाम किया और यीशु की बादशाही का ऐलान किया। और जब मैं इसको पढ़ रही थी आई वॉज वेरी इमोशनल, क्योंकि जब आप खिदमत में होते हैं तो आपको इस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। 2022 में मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला और कलाम सुनाने का मौका मिला चर्च के अंदर। फादर्स डे था और फादर्स डे को मैंने रिलेट किया। वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल शेयर की कि जो बाप हैं या जो पेरेंट्स हैं जो नशाबाजी का शिकार हो जाते हैं, नशा करते हैं, और वहाँ पर एक भाई थे जो बड़े ही ऑफेंसिव हुए। गो के डायरेक्टली मैसेज उनकी तरफ नहीं था, लेकिन कलाम जो है वो चोट लगाता है। अगर कलाम जो है कन्विक्शन ना दे दिल में तो वो कलाम खालिस नहीं होता। और उस भाई को इतना गुस्सा चढ़ा कि ड्यूरिंग द मैसेज जो है वो स्टेज पर आ गए और कह रहे हैं कि बाजी आप जो कलाम सुना रहे हैं ये बहुत गलत है, क्योंकि हमारा बाप हमसे बड़ी मोहब्बत करता है। और उनका बाप उनसे कैसी मोहब्बत करता था कि उनको अपने साथ बिठाकर नशा करवाता था, साथ बिठाकर शराब पिलाता था। और आप इमेजिन करना शुरू करें कि आप एक फ्लो में कलाम सुना रहे हैं और कोई जमायत में से उठकर इस तरह स्टेज के ऊपर आकर आपके ऊपर तनकीद करे और आप कैसे इस सिचुएशन को संभालें। और मैंने बड़ी मोहब्बत से जो है उस भाई को जो है काम डाउन किया और वो नीचे बैठे। लेकिन उससे भी बढ़कर क्या हुआ कि वो जब घर गए उन्होंने अपने बाप से इस बात को शेयर किया। और क्योंकि वो बाप सेकुलर था, उसने क्या किया, उसने कहा कि तूने उसका गले बांध क्यों नहीं पकड़ा और उसके मुंह पर तमाचे क्यों नहीं मारे जब वो शराब के खिलाफ बात कर रही थी, जब वो सिरगट नशाबाजी के बारे में बात कर रही थी। तो खिदमत में होते हुए जो है हमने शमाउन की जिंदगी से यही सीखा है कि जब आप खालिस्तन कलाम सुना रहे होते हैं तो जो बदरू गिरफ्ता लोग हैं वो जो है वो उन्हें गुस्सा आता है। और खुदा की करनी ऐसी हुई कि जब वो बाप है उसने ऐसे अल्फाज कहे, उसी दिन उसी घड़ी जो है
ان پر فالج کا اٹیک ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کبھی اپنے بیٹوں سے بات نہ کر پائے، کیونکہ ان کی زبان جو ہے وہ بند ہو گئی، اپنے بیٹوں کو نصیحت نہ کر پائے، مرنے سے پہلے کوئی بات نہ کر پائے اپنے بیٹوں کے ساتھ، اور کچھ ہی جو ہے ماہ میں ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔ خداوند اپنے کلام کی غیرت رکھتا ہے، اور میں یہ واقعہ اس لیے بھی بتا رہی ہوں آپ کو کہ کہیں پر بھی جب خدا کے کلام کی بات ہو رہی ہو، خدا کا کلام شیئر کیا جا رہا ہو، تو کبھی بھی انگلی نہ اٹھائیں، بلکہ دعا کریں کہ جو خادم کلام سنا رہا ہے، جو کلام کی بات ہو رہی ہے، وہ زندگیوں میں جڑ پکڑے۔ ہیلیلویا۔ تو دوبارہ سے جو ہے شمعون کی طرف آتے ہیں، شمعون کانوی کی طرف آتے ہیں کہ وہ جو ہے انہوں نے کلام سنایا ہے وہاں کے بتوں کے خلاف، اور یسوع کی بادشاہی کا کلام انہوں نے سنایا ہے۔ یسوع ہر قسم کے دل کو بدل سکتا ہے، چاہے وہ قوم پرست کا ہو یا باغی کا۔ جوش کو اگر یسوع کے سپرد کیا جائے تو وہ خدمت کا جذبہ بن جاتا ہے۔ سچا جوش وہی ہے جو صلح اور سچائی کے لیے قربان ہو۔ ہیلیلویا، پریز جیسس۔ شمعون کانوی کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع ہر مزاج کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور یہ جو ہے خوبصورت بات ہے۔ دیٹس مین کہ آپ میں سے کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز رہ ہی نہیں جاتا آفٹر گیٹنگ ٹو نو اباؤٹ دیز اپوسٹل لائفز، رسولوں کی زندگی کو جاننے کے بعد، کہ میں کم بولتا ہوں، میں جوشیلا ہوں، میرے منہ سے بات نکل جاتی ہے، بلا بلا بلا، کچھ بھی ہے۔ شاگردوں کی زندگی کو جاننے کے بعد آپ کے پاس کسی بھی طرح کا ایکسکیوز نہیں رہ جاتا خدمت میں نہ آنے کے لیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یسوع مسیح شاگردوں کی کمزوریوں کو لے رہے ہیں اور ان کمزوریوں کو جو ہے خدمت میں جو ہے بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ پریز جیسس۔ شمعون کانوی کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہر مزاج کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسے دل سے مان لیں۔ پریز جیسس۔ تو کمنٹس میں لکھیں کہ اے خداوند پیارے مسیحا، میں پورے دل سے تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، میں پورے دل سے تجھے سچا جانتا ہوں کہ تو ہی راہ، حق اور زندگی ہے۔ ہیلیلویا، پریز جیسس۔ اب جو 11واں رسول ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، مقدس یہودا اسکریوتی کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ بہت مشہور ہیں اور بہت سے لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کبھی کبھی بہت بڑا زخم جو ہے ہمیں ان لوگوں سے ملتا ہے جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ہمیں دھوکہ ان لوگوں سے ملتا ہے جن پر ہم بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ یہودا اسکریوتی کی کہانی، جو یسوع مسیح کے ساتھ چلا مگر دل میں گمراہی لیے رہا۔ یہودا اسکریوتی جو ہیں ان 12 رسولوں میں شامل تھے جنہیں یسوع مسیح نے خود چنا۔ وہ خزانے، چرچ کی تھیلی کو سنبھالنے والا آپ کہہ سکتے ہیں، خزانچی تھا چرچ کا، ارلی کلیسیا کا، اور کئی مرتبہ یسوع نے وہ جو ہے جتنے بھی معجزات کیے اس کا چشمدید جو ہے وہ گواہ بھی رہا ہے، مگر اس کا دل لالچ، خود غرضی اور اندھی خواہشات میں جھکڑا ہوا تھا، اور اس نے اپنے استاد کو جو ہے چاندی کے
30 सिक्कों के अर्ज जो है या 22 जो है बेच डाला। उस उस्ताद को जिसने उससे मोहब्बत की, उसे इख्तियार दिया, उसे जिंदगी दी। मत्ती की अंजील में हम पढ़ते हैं कि यहूदा सरदार काहनों के पास जाता है और यस्सु को पकड़वाने के लिए कीमत को लेता है। हालेलुया। फिर यूहन्ना 18वें बाब में हमें मिलता है कि वो गतसमनी के बाग में चूम कर जो है यस्सु को पहचान कर पकड़वाता है। क्या सितम है, क्या माजरा है कि जिसको आप जिंदगी दें, हमेशा की जिंदगी दें, आसाइश दें, हर तरह की सहूलत दें, वही आपको पकड़वाता है। और चूमना जो मोहब्बत की अलामत होता है, जैसे आपको पता है पुरानी रवायात में भी है कि जो शागिर्द थे वो भोसा लेकर एक दूसरे को मिला करते थे। चूमना जो था, भोसा लेना जो था, वो एक मोहब्बत की अलामत थी। उसी लम्हे जब यहूदा अस्करियोती ने जो है यस्सु को चूमा, एक गद्दारी का निशान बन गया। बाद में जमीर की चुभन के बाइस जो है चांदी के सिक्के वापस करने के लिए भी वो गया, मगर जब उसे सुकून ना मिला तो उसने खुद कशी कर ली। और यहां पर मैं पास लेना चाहूंगी उन लोगों के लिए भी, अगर आपने कभी भी अपने माइंड में खुदकशी करने का इरादा किया है, अपनी जिंदगी लेने का इरादा किया है, अपनी जिंदगी को जाया करने का इरादा किया है, तो यहूदा अस्करियोती के टाइटल को याद रखिएगा कि उसके ऊपर गद्दारी का टाइटल लगा था। इसी वजह से पशेमानी में जो है, गद्दारी की पशेमानी में उसने अपनी जान ले ली। खुदा की दी हुई जिंदगी की आपने कदर करनी है और उस जिंदगी को आखिरी सांस तक उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। टैप टैप करते रहें ताकि ये ब्रॉड गिरने ना पाए नीचे, प्लीज। यहूदा अस्कर की जिंदगी हमें दिखाती है कि ज़ाहरी खिदमत से कुछ नहीं होता। जैसे यहूदा अस्करियोती की ज़ाहरी खिदमत बहुत बड़ी खिदमत हमें नजर आती है, लेकिन वो सिर्फ ज़ाहरी खिदमत थी। अगर दिल खुदा से जुड़ा ना हो तो वो जो ज़ाहरी खिदमत है वो कुछ भी नहीं। अगर दिल खुदा से नहीं जुड़ा तो शागिर्द भी जो है वो दुश्मन बन सकता है। रूहानी तौर पर हम बहुत से डिसाइपल्स बनाते हैं, म्यूजिकल के यहाँ पर टीचर्स हैं वो भी जानते हैं, शागिर्द बनाते हैं, उस्तादी शागिर्दगी का जो एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर उनका दिल खुदा के साथ नहीं जुड़ा उन शागिर्दों का, तो उनका आपका दुश्मन बनने में देर नहीं लगेगी। तो जब भी आप उस्तादी शागिर्दी डिसाइपलशिप का प्रोग्राम शुरू करें तो आप ज़रूर उन शागिर्दों को खुदावंद के हजूरी में लाएं कि खुदावंद उनको जो है बदले और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और मैं आपके साथ एक वाकया भी शेयर करना चाहूँगी। रिसेंटली जो है 10 डेज अगो जो है साउथ अफ्रीका में एक क्रिश्चियन फैमिली जो है उसके 7 जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको कत्ल कर दिया गया। 4 जो लोग हैं उनको जो है उनकी शारागें काटी गई, जो है तलवार जैसे नेज़े से और छुरियों से काटा गया उनको। ग्रेप करने के बाद, जनाकारी करने के बाद, और जो 3 मेंबर्स थे, एल्डरली पर्सन थे, उनको गोलियों से उड़ाया गया। एंड देयर वाज अ वेल नोन क्रिश्चियन फैमिली। मेरी सिस्टर जो हैं उनके मिनिस्ट्री पार्टनर्स भी थे और उनका अपना बिजनेस था। और 2 ऑफ द जो उनके वर्कर्स थे, जो उनके अंडर काम करते थे, वो आंख लगाए हुए थे उस फैमिली पर।
اور انہوں نے موقع پایا اور اس فیملی کو جو ہے موقع پاتے ہوئے پورے خاندان کو ایک گھر کے 7 افراد کو جو ہے قتل کر دیا. اور یہ جو واقعہ ہے ڈربن میں ساؤتھ افریقہ میں جو ہے اس وقت دل دہلانے والا ہے کہ کیسے ان کا قتل عام کیا گیا ہے. بٹ دے ہیڈ اے ٹرسٹڈ آن دیئر امپلائیز, اور ایک عرصے دراز سے جو ہے ان کے انڈر کام کر رہے تھے. دیکھیں, اور یہ مثال اس کے ساتھ ویل جاتی ہے جیسے ہم یہودا اسکریوتی کی مثال کو پڑھ رہے ہیں کہ جیسے یسوع مسیح نے ہر ایک چیز پرووائڈ کی یہودا اسکریوتی کو, اس خاندان نے بھی ان امپلائیز کو روزی روٹی مہیا کی, ٹھیک ہے, انشورنس مہیا کیا, ان کے خاندان کو پرووائڈ کیا, جاب دی, روپیہ پیسہ دیا, ٹیک کیئر کی. لیکن اس کے باوجود غداری جو ہے ان لوگوں کے دلوں میں آئی اور اس خاندان کا صفایا کر دیا انہوں نے. اور یہ میں نے آپ کو بڑا جو ہے بڑے کوڈ ورڈ میں اس واقعے کو بتایا. اس واقعے کی جب ڈیٹیل کو پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ 4 جو نوجوان اس گھر کے تھے ان کو رینگتے ہوئے جو ہے وہ سنسان علاقے میں لے کے گئے اور بہت برا ان کے ساتھ کیا. تو خدا ہم سب کو محفوظ کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے مسیحی بہن بھائیوں پر, مسیحی فیملیز پر اظہار ثانی جو ہے دنیا کے مختلف حصوں میں ابلیس جو ہے, جو لوگ چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, کوئی بھی ہے, اگر وہ یسوع مسیح کی قربت میں نہیں, اگر وہ یسوع مسیح کی جو ہے نجات کو نہیں جانتا یا اس نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا, تو وہ آپ کی جان لینے سے دریغ نہیں کرے گا. اسی طرح جس طرح یہودا اسکریوتی نے جو ہے یسوع مسیح کو چوم کر پکڑوا دیا اور اس کو اس کے مسلوب کرنے والوں کے حوالہ کیا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو پیسہ ہے وہ روح کا سکون نہیں خرید سکتا. یہودا نے یسوع کو دیکھا, سنا, چھوا, پھر بھی اس نے تاریکی کو چنا. And there was a free will at his part. اس کی طرف سے یہ ایک آزادانہ مرضی تھی کہ اس نے تاریکی کو چنا. صرف یسوع کی قربت میں رہنا ہی کافی نہیں ہے. اور بہت سے آپ کو یہاں پر بھی ملیں گے جو کلام کی باتیں کریں گے, فر انہوں نے حوالے رٹے ہوں گے, لیکن بدعت کو پھیلائیں گے یا لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کریں گے. آپ ان لوگوں کو ان کے پھلوں سے پہچان لیں گے کہ صرف یسوع کی قربت میں رہنا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ یسوع المسیح کے ساتھ چلنا بھی بہت ضروری ہے. ہلیلویا. اگر ہم جھوٹے مفادات کے لیے سچائی کو بیچ دیں گے تو پھر ہم بھی جو ہے یہودا اسکریوتی کی طرح پچھتائیں گے. خدا ہمیں ہر لمحہ توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے, مگر ٹھیک وقت پر فیصلہ کرنا لازم ہے. اپرچونٹیز ہر کسی کے پاس آتی ہیں, لیکن اگر آپ نے اس اپرچونٹی کو مس کر دیا ہے, اس موقع کو مس کر دیا ہے یہودا اسکریوتی کی طرح, دیٹس مین اٹس ٹو لیٹ ناؤ. یہودا کی کہانی جو ہے یا یہودا اسکریوتی کا واقعہ جو ہے, یہودا اسکریوتی کا واقعہ جو ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ دل کی وفاداری سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کبھی نہ آپ سے بچھڑے تو نیچے کمنٹس میں لکھیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کلام کو سن رہے ہیں, کہ خدا مجھے وفادار شاگرد بنا دے تاکہ میں ہر دل سے تیری قربت میں آگے بڑھوں. لیکن اے خداوند, تیری وفاداری میری زندگی میں اولیت رکھے. خداوند سے فیتھفلنس کو مانگے, تابعداری کو مانگے, ایمانداری کو مانگے کہ جیسس یو آر دا فرسٹ پیورٹی ان مائی لائف.
यू आर एवरीथिंग। मैं अपनी जिंदगी में हमेशा अवलियत तुझी को दूंगा। मैं यहूदा अस्करियोती की तरह नहीं बनूंगा जिसने चूम कर तुझे पकड़वा दिया। हालेलुया, प्रेज जीसस। तो हम देख रहे हैं कि हर एक शागिर्द की जिंदगी से हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और स्पेशली जो लोग खिदमत में हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इन 12 रसूलों की जो है डीप स्टडी करें, क्योंकि उनकी जिंदगी से जो है हमें खिदमत में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। 12वां रसूल जो है बहुत प्यारे रसूल हैं, उनकी जिंदगी के बारे में सीखेंगे। उनका नाम है इंद्रियास। वो पहला रसूल था जिसने यीशु मसीह को पहचाना, शायद आखिरी जिसने सलीब पर खुशखबरी फैलाई। ये है कहानी इंद्रियास रसूल की, एक खामोश मगर अजीम मिशनरी। इंद्रियास जो हैं शमौन पतरस के भाई हैं, पहले शागिर्दों में से एक थे जिसे यीशु मसीह ने बुलाया। उसका दिल तलाश में था, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भी पैरोकार था, मगर जैसे ही उसने यीशु मसीह को देखा तो वो मान गया। इंद्रियास वो शख्स था जो दूसरों को यीशु से मिलवाता था। हालेलुया, he become mediator. That's a beautiful thing. जब आप दरमियानी बन जाए किसी को यीशु के साथ मिलवाने के लिए। हालेलुया। रवायात के मुताबिक है, चाहे वो उसका भाई है, बच्चे हैं या फिर गैर कौम के लोग, वो लोगों को यीशु मसीह से मिलवाता था। रवायात के मुताबिक इंद्रियास ने यीशु मसीह को यूनान, तरीस, सुकुतिया और बल्कीसी के इलाकों तक फैलाया, ऐसे मकामात जहां यहूदी कभी ना गए थे। डिफरेंट एरियाज जो हैं, लोगों की मुखालफत, गैर कौमों का गुस्सा और हुक्मरानों का जुल्म कुछ भी उन्हें अंजील की बशारत से ना रोक सका। हालेलुया। जब इंद्रियास यूनान के शहर पित्रा में पहुंचा तो उसने लोगों को बुत परस्ती से तौबा और यीशु पर ईमान लाने की दावत दी। दावत देना जो है वो बहुत जरूरी है। ये पैगाम वहां के गवर्नर को बर्दाश्त ना हुआ और उसे सलीब पर चढ़ाया जाने का जो है हुक्म दिया गया। और गौर से सुनिएगा कि इंद्रियास ने क्या रिक्वेस्ट की। इंद्रियास ने रिक्वेस्ट की, इल्तिजा की कि मुझे अपने खुदावंद की जैसी सलीब पर चढ़ने के काबिल ना समझो। कुछ ऐसे ही अल्फाज उसके भाई शमौन पतरस के भी थे। चुनाचे जो है उसे एक्स शक्ल सलीब में बांधा गया, जिसे आज सेंट एंड्रयू क्रॉस भी कहा जाता है। और जैसे मैं पहले भी कन्फेस कर चुकी हूँ इस बात को कि जब मैं इनकी स्टडी कर रही थी, कि आज के बाद मैंने कभी भी ये नहीं कहना कि ये क्रॉस ये गलत शेप का है, क्योंकि दीज क्रॉसेस रिप्रेजेंटिंग अपोस्टल्स क्रूसिफिकेशन। हालेलुया। और उनकी मसलूबियत में एक और गौरतलब बात है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। बैक द स्टेज ना जाएं या बैक द स्क्रीन ना जाएं आप। इंद्रियास को कीलों से नहीं बल्कि रस्सियों से बांधा गया था ताकि वो ज्यादा देर जिंदा रहे और ज्यादा देर तक खुदा का कलाम सुनाए। हालेलुया। और जब आप बातों को इमेजिन करना शुरू करते हैं, मेरा दिल खुशी से लबरेज हो गया
کہ ہاؤ بیوٹیفلی ہی پلے دا اسٹریٹجی، کہ وہ لمحوں کو کاؤنٹ کر رہا ہے بڑھانے میں، کہ پہلے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے میرے خداوند کی طرح کی صلیب پر نہ چڑھایا جائے. سیکنڈ، وہ جو ہے ان کو کیلوں سے نہیں جڑا گیا بلکہ رسیوں سے باندھا گیا ہے تاکہ ان کی جو موت ہے وہ سلولی ہو. وہ 2 دن تک صلیب پر زندہ رہا اور لوگوں کو نجات کا پیغام دیتا رہا، دعا کرتا رہا اور اپنے دشمنوں کے لیے شفاعت کرتا رہا. ہیلیلویا. آخری لمحے میں اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے خداوند یسوع جسے میں نے پیار کیا، جس کے لیے میں جیتا رہا، اب میں مرنے کو تیار ہوں. پریز جیسس. تھینک یو جیسس. ہیلیلویا. اندریاس کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے جو سچائی پہلے پہچانتا ہے اسے پہلا قدم بھی اٹھانا پڑتا ہے. خدمت صرف لفظوں سے نہیں بلکہ قربانی سے ہوتی ہے. پریز جیسس. اور صلیب جو ہے وہ ہار نہیں بلکہ حیات ابدی کی راہ ہے. آمین. پریز جیسس. تو جتنی بھی شیئرنگ کی گئی ہے اور جتنی بھی بات ہم نے اپوسٹلز کی، رسولوں کی زندگی کے بارے میں کی ہے، خدا مجھے اور آپ سب کو بہت بہت زیادہ برکت دے. یہ صرف میں نے بہت زیادہ جو ہے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے شیئر کیا ہے، لیکن جب آپ خود سے اس کو اسٹڈی کریں گے میرا ایمان ہے کہ آپ بہت زیادہ برکت پائیں گے. آمین. گاڈ بلیس یو آل.